Hello, my beautiful zodiac signs, especially the water signs, because this reading is about the water signs, that is Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay, so I hope you're doing great in your life. Well, welcome to my reading. This is a love reading for you all, that is for all the water signs, water zodiac signs, that is Cancer, Scorpio, and Pisces once again. Okay, the name of the reading is Love Miracle. Why Love Miracle? Because we tend to face many ups and downs in our lives, right? किसी का ज़्यादा, किसी का कम, लेकिन होता तो ज़रूर है. And हर एक क्षेत्र में होता है, किसी के साथ कोई क्षेत्र, किसी के साथ कोई और फील्ड, So love and relationships भी उनमें से एक एरिया है, एक फील्ड है, एक स्फीयर है. तो देखते हैं आप लोगों की जिंदगी में स्पेशली पर्टेनिंग टू लव लाइफ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, एनर्जीज कैसे है वहां पे. सो दैट्स व्हाई लव मिरेकल, बिकॉज इफ आई डू फाइंड समथिंग नेगेटिव गोइंग ऑन, नेगेटिव एनर्जीज अगर कुछ है तो I'll let you know आप उस नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे. गाइडेंस भी देखेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी इंक्लूडेड है इस रीडिंग में. ओके, मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर, वेदर यूर मैरिड, अनमैरिड, पर्सन ऑन योर माइंड, कुछ भी हो सकता है. मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर भी इंक्लूडेड है. पहले देखेंगे आपका लव सिचुएशन कैसा चल रहा है अभी. ओके, नाउ यू कैन वॉच इट एज अ सन साइन, मून साइन, ascendant or rising sign, and Venus sign, since it's a love reading. And since it's a general reading, my dear water signs, all of you know that it's a general reading, collective reading, so certain things might resonate, certain things might not resonate. Okay, please keep that in mind. पहले आपका लव सिचुएशन देखते हैं क्या चल रहा है आप दोनों के बीच, in your love life, so to say. That is for Cancer, Scorpio, and Pisces. Ooh, it seems you're healing from something, Pisces, either you or your partner. Why? What happened? Healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. It seems you had some kind of a toxic relationship, a toxic bond, a very addictive bond, devil energy. Yeah, इसीलिए healthy choices का कार्ड आया है, Deep down at the bottom of the deck, this card has come out. Healing heart. That means you need to heal your heart, Pisces. हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से कुछ अनहेल्दी चॉइसेस, या फिर आपके तरफ से अनहेल्दी चॉइसेस. आपने ऐसे पार्टनर को चूज किया जो बहुत एडिक्टिव रहा हो आपके प्रति, बहुत पॉजिटिव रहा हो, बहुत ऑब्सेसिव रहा हो. इस वजह से आपको रातों की नींद नहीं आ रही है. ऑब्वियसली एडिक्टिव अगर कोई इंसान हो, ऑब्सेसिव हो, पॉजिटिव हो, तो हमेशा वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है और बहुत कुछ मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड रहता है वो रिश्ता. उस रिश्ते में दोनों इंसान ही मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं. तो इसीलिए दिस कार्ड हैज कम आउट. हेल्दी चॉइसेस, मेकिंग हेल्दी चॉइसेस इन लव एंड इन लाइफ, self love, self care, being happier. So it seems you were not happy, or you are not happy, Pisceans and Cancerians and Scorpios, because this is a collective water sign reading. So my dear water signs, it seems you're not happy with your love partner. Could be your spouse if you're married. बहुत टॉक्सिक रहा है जैसा मैंने कहा आपका रिलेशनशिप. So you need to, completely defocus from that person in your life who is creating turbulence, mental turmoil, and you need to shift your focus completely on your own self. हेल्दी चॉइसेस आपके लिए अभी जरूरी है, क्योंकि आपका चॉइस गलत रहा, अनहेल्दी रहा, क्योंकि वो इंसान अनहेल्दी पैटर्न से
बहुत प्रभावित है, डेविल एनर्जी टैरो में जिसे कहते हैं। इसीलिए आपका रिश्ता, आपका रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक हो गया, एडिक्टिव हो गया, फुल ऑफ पॉजिटिवनेस, फुल ऑफ ऑब्सेसिवनेस। इस वजह से शायद आप रातों को सो भी नहीं पा रहे ठीक से। You can certainly let me know in the comment section if it resonates with you. So all you need to do, my dear water signs, you need to detach. Immediately detach. Or maybe you are very addictive towards that person. ऐसा भी हो सकता है. So you need to focus on your own self. You need to detach. You need to make your choices healthy, Self love, self care की जरूरत है. Only then you will be happy, my dear water signs, Cancer, Scorpio and Pisces. Twin flame का भी कार्ड आया है यहाँ पे. Basically it speaks of yin and yang energies. In the sense feminine energy, yang in the sense masculine energy. तो हम सबके बीच, हम सबके अंदर ये दोनों ही एनर्जीज रहते हैं, फेमिनिन भी मैस्कुलिन भी. वहीं पर बैलेंसिंग का काम आता है, बैलेंसिंग का पॉइंट उठ के आता है. यू हैव टू बैलेंस योर एनर्जीज. कोई बहुत ज्यादा हॉट टेम्पर्ड है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, इसका मतलब उनका यंग एनर्जी बहुत हाई है. कोई बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, सबड्यूड है, इसका मतलब उनका और भी बहुत सारे फैक्टर्स है. मैंने तो सिर्फ एग्जाम्पल साइट किया, 1-2 पॉइंट बता के. इसका मतलब उनका इन एनर्जी, दैट इज द फेमिनिन साइड, इज वेरी स्ट्रोंगर. सो बैलेंस, या बैलेंस, एनर्जीज को बैलेंस करना है. पहले आपके खुद के अंदर बैलेंस करें, उसके बाद आप दोनों के बीच बैलेंस करें. एंड यू हैव टू डिटैच. द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज यू नीड टू डिटैच. बहुत ज्यादा अटैचमेंट है आप दोनों के बीच, या तो दोनों के ही तरफ से, एज इफ एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाते हैं. नो, दैट इज नॉट अ लव बॉन्ड माय डियर, दैट इज नॉट लव, दैट इज अटैचमेंट. लव इज अनकंडीशनल. यहाँ पे इस टाइप के बॉन्ड में बहुत सारे कंडीशंस उभर के आते हैं जो लव नहीं कहता है सही मायने में. सो अपने एनर्जीज को प्लीज बैलेंस करें वाटर साइंस. तभी एक ब्यूटीफुल सा यूनियन पॉसिबल है. नहीं तो ये रिश्ता टूट जाएगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू फील चोक्ड. आई होप यू आर ऑलरेडी फीलिंग दैट इफ यू आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ सिनेरियोस इन योर लव लाइफ. बिकॉज अगर आप लोग सोलमेट भी हैं और ट्विन फ्लेम भी जर्नी में है, तो you must complement each other. Instead of हावी होना एक दूसरे के ऊपर, deep attachment, you must complement each other. अगर twin flame भी हो, कार्मिक भी हो, soulmate भी हो, कुछ भी रिश्ता हो लव लाइफ में, कैसा भी रिश्ता हो, कार्मिक, soulmate, twin flame, कैसा भी हो, it has to be in a detached way, Attachment आपको सुख शांति नहीं दे सकता, never. तो फिर ये sleepless nights ही होगा आपके लिए. Try to understand what I'm trying to make you understand, rather. What I'm trying to convey. Get the point. Mirror. Both of you are mirroring each other. हो सकता है यू आर डीलिंग विथ योर ट्विन फ्लेम, और ऐसा कोई इंसान या तो फिर जिसके साथ आपका बहुत ज्यादा गहरा अटैचमेंट है, एंड दैट अटैचमेंट इज नॉट हेल्दी. माया, मोह. लव इज अनकंडीशनल. इट मेक्स यू फील फ्री. कोई बर्डन नहीं फील करेंगे उसमें. यू विल फील लाइट, लाइट, जस्ट लाइट लाइक अ फेदर. फ्री फील करेंगे. यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है. यहाँ पे पूरा टॉक्सिक बन चुका है रिलेशनशिप,
You guys are mirroring each other. wounded भी है कोई या फिर दोनों ही wounded है. Obviously अगर relationship toxic होगा तो wounded तो होंगे ही, isn't it? Let me check out some messages from your partner side. देखते हैं. स्टोरी तो खैर जिस्ट पता चल गया. डीप इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है. देखे, समझे, रिफ्लेक्ट करे, इंट्रोस्पेक्ट करे, अपने अंदर झांके, अपने रिश्ते के बारे में सोचे कि कैसा चल रहा है आपका रिश्ता, आपका बर्ताव कैसा है उस इंसान के प्रति, उस इंसान का बर्ताव आपके प्रति कैसा है. हाउ आर यू गाइज handling each other or dealing with each other. Introspect, reflect on all these factors. It's extremely necessary because things are toxic, my dear water signs. Obviously ये हर एक water sign, since it's a general reading, ये हर एक water sign के साथ ना भी हो सकता है या फिर हो भी सकता है. So take what resonates with your own love story. Do not fit a different story unnecessarily, okay? That is certainly not recommended. देखते हैं कुछ messages. उसके बाद I'll move on to the planetary aspects. देखते हैं planets क्या बताते हैं. अभी highest influential planetary aspect क्या काम कर रहा है आपके लिए, जिसके वजह से ये सब हो रहा है. कैसे आप लोग चेंजेस कर सकते हैं. हालांकि मैंने चेंजेस कैसे कर सकते हैं वो तो ऑलरेडी मैं बता चुकी. ओके, लेट्स सी मैसेजेस. इतना ज्यादा पैशन है, इतना ज्यादा इंटेंस है कि वो पॉजिटिवनेस, ऑब्सेसिवनेस में चला गया, एडिक्टिव मोड में चला गया. जाते जाते ऐसा करते 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 टॉक्सिसिटी फैल गया इस रिश्ते के अंदर. एक चीज को अगर आप इनिशियली हील नहीं करेंगे तो वो घाव, वो वुंड रहते रहते टॉक्सिक बन जाता है. Isn't it? Deep down you're feeling broken. I feel shattered about this situation. Maybe your partner. You can certainly come back, my dear, but for that you need to change your perception. Because perception is everything. Thoughts shape your life. Chemistry, you have a great chemistry. Maybe you might be having a great chemistry, but ऐसा भी chemistry क्या जो खा बैठे एक दूसरे को, जैसा मैंने अभी अभी कहा, हावी हो जाना एक दूसरे के ऊपर. ऐसा इंटेंसिटी कोई काम का नहीं है, ऐसा पैशन कोई काम का नहीं है. वो आग ही क्या जो जला के राख कर दे. Getting my point? Water signs? I have never felt a passion this intense. See? This is from your partner's side. Sabotage. I mess up the good things in my life sometimes. होना ही है. अगर इतना कंट्रोल करेंगे कि इंसान को, इतना पॉजिटिव रहेंगे उसके प्रति, इतना ऑब्सेसिवली पेश आएंगे, तो obviously you will mess up things, and that is what has happened. The relationship has become toxic because of your addiction. Unworthy, you're a better person than I am. So this is what your partner feels. Maybe आप stable है, आप ऐसे नहीं है, so आपसे भी सहा नहीं जा रहा है. Obviously एक इंसान choked feel करता है. दूसरा इंसान जब ऐसे obsessively behave करता है दूसरे इंसान को, वो इंसान भी रातों को सो नहीं पाता है ठीक से, ये इंसान भी
इतना अफेक्टेड हो जाता है उसके वजह से, उसके पार्टनर के वजह से, यहां पर भी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। ओवर थिंकिंग, पता नहीं कहाँ गई है, कहाँ गया है, किसके साथ बात कर रहा है, माई गुडनेस, व्हाट एंड व्हाट नॉट, ऑल दिस काइंड ऑफ शिट्स। हाँ, okay, fine. Saw the messages. Now let's check out the astrological aspects, the planetary aspects. देखते हैं. Please show the planetary side, universe, for this relationship for the water sign. Please show the planetary aspects. Please show the planetary aspects, universe, for Cancer, Scorpio, Pisces. What's going on in their love life, which is the highest influential planetary aspects. Highest influential planetary aspects. देखते हैं. Oh my goodness, no wonder, no wonder. Deep down, Pluto is the planet of obsession. Pluto is the planet of possessiveness. The dark side. It brings out your dark side. देखना चाहते हैं? See, Pluto. It's a dwarf planet, as we all know, astronomically. But astrologically, it's a transformative planet. हर एक प्लैनेट का, जैसा मैं पहले रीडिंग में भी मैंने मेंशन किया, हर एक प्लैनेट का डार्क साइड भी है, लाइट साइड भी है. उसी डार्क साइड से निकल के हम लोग एनलाइटेंड होते हैं. सो अभी जो ये टॉक्सिसिटी, ये सब कुछ प्लूटो के वजह से हो रहा है, विच इज डीप डाउन इन योर सबकॉन्शियस, एंड वॉट एवर यू आर डूइंग, इट्स बेस्ड ऑन योर सबकॉन्शियस. अपने मन पे रोशनी डालिए, enlighten your mind. Sun moon combination. Enlighten your mind. This is what you need to do, and this is what you're doing right now. Pluto का influence चल रहा है. No wonder. My dear water signs, please enlighten yourself. First of all, the very first step is to detach. You are extremely attached right now. Attachment ज़्यादा होगा तो obsession आएगा, possessiveness आएगा, addiction बन जाएगा. और ये सब होने से क्या होता है? तुम वहां क्यों गई? तुम इससे बात क्यों की? तुम ऐसे क्यों पहनी ये कपड़ा? उससे ऐसे बात क्यों की? What and what not? It is ridiculous, ridiculous. And make sure that you understand that this is not love. This is not what love is or love should be. Full of conditions. ये क्यों, वो क्यों, this and that, and so it's very clear, very, very clear, very distinct energies, very distinct picture, crystal clear picture. Let's check out some more guidance.
लेट्स सी यूनिवर्स और क्या कहना चाहता है, आपको कैसे सेव करना चाहता है यूनिवर्स. बट टेक दिस पॉइंट्स एंड फर्स्ट सेव योर ओन सेल्फ. प्लीज शो द गाइडेंस कार्ड यूनिवर्स for the water signs Cancer, Scorpio, Pisces in their love life, current love life situations. Please show the guidance card for Cancer, Scorpio, Pisces for their current love life situations. What should be the guidance? Pluto, Pluto, Pluto. यही प्लूटो आपको ट्रांसफॉर्म करने को मदद करेगा, ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगा. Because Pluto is a planet of transformation. ये पहले अपहीवल लाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं और भी इन्फ्लुएंसेस देख पा रही हूँ. लेकिन अब भुगतने के बाद आपको एहसास होगा, आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आप रिफ्लेक्ट करेंगे, एंड दैट इज हाउ वी ग्रो माय डियर इन आवर जर्नी. दैट इज हाउ आवर स्पिरिचुअल जर्नी इज. दैट इज हाउ वी इवॉल्व, moving towards the light, leaving the darkness behind. Pluto is the planet of darkness, but this very planet will help you in your transformation in a big, big way. ये तो खुद एक ड्वार्फ प्लैनेट है, लेकिन इसका ताकत जो है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते. इफ यू रियली नो how Pluto works. Okay, let's check out some other guidance. Safety, see. Obviously आप ऐसे इंसान के साथ अनसेफ ही फील करेंगे. जो इंसान आपको फ्रीली जीने ना दे, उस इंसान को अनसेफ बोलेंगे नहीं तो और क्या बोलेंगे, isn't it? So create your life, my dear. Create your destiny. Your destiny, you can create your destiny. यही ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको क्रिएट करवाएगा. And Pluto is very creative also. अपने माइंड के थॉट्स को क्रिएट कीजिए. सन आपको गाइड कर रहा है, इन द सेंस एनलाइटन करने में, आपके माइंडसेट को, आपके थॉट्स को, आपके परसेप्शन को एनलाइटन करने में मदद कर रहा है. बिकॉज सन मून कॉम्बिनेशन मैंने देखा अभी, जो दिखाया भी आपको. जो फर्स्ट कार्ड आया था डेक का, इट वाज सन मून कॉम्बिनेशन. ये जो डार्क साइड है दिमाग का, उस पे सन रोशनी डाल के ब्राइटर कर रहा है. तो अब इसका मतलब क्या, आप अंधेरे से धीरे धीरे बाहर निकलेंगे. ऑब्वियसली उसमें वक्त लगेगा, लेकिन कोशिश आपको करना पड़ेगा. यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू वर्क हार्ड, रियल हार्ड. ओके, तभी रेडियंस पॉसिबल है. Rejoice, make love, celebrate. So create a beautiful life, my dear. यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्रिएट करने के लिए कह रहा है. See, my goodness, be free from all that holds you back. Because your relationship, अगर इस तरीके का relationship है, so that is not love. Please don't be illusioned or delusion, for that matter. It's an illusion कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है या बहुत प्यार करती है, इसीलिए मेरे पे इतना पॉजिटिव है मेरे से. इसीलिए no, absolutely not.
It's an illusion that you're having. आप पाल रहे illusion को, आपको गलत फहमी है. My dear water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. So be free. It's a rut. Toxicity relationship में फैल जाए, that means it's a rut that you're having. And be safe, my dear. Maybe you're dealing with an unsafe person. Let's check out other guidance. Please show some other cards, universe, for the guidance part for water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Guidance for water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. What should be the guidance? Other guidance for Cancer, Scorpio, Pisces in their current love life situation. In their current love situations. Please pay heed to the guidance, my dear. Please pay heed to the guidance. ये guidance ही आपको रास्ता दिखा रहा है. इसे अनदेखा मत कीजिए. Celebrate your wins. First, you need to win. You need to get yourself out of this rut. Be fearless. Okay? Be fearless. Welcome the divine masculine. इसीलिए fearless. हो सकता है आप बहुत डरे हुए हैं. ऐसे इंसान से रिश्ता है आपका जो हावी हो रहा है आपके ऊपर, और आप डर के मारे वही करते जा रहे, जो वो बोल रहे, जो वो कह रहे. यहाँ मत जाओ, इस कपड़े को ऐसे पहनो, ये वाला पहनो, उसके सामने ये कपड़ा नहीं पहनने का, उसके सामने ऐसे बात नहीं करने का, उसके बगल में नहीं बैठने. I hate that. I don't even feel like saying all this, you know. Anyways, so this is what is exactly happening with you guys, water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Obviously सबके साथ ये सेम स्टोरी तो नहीं होगा, सबका बर्थ चार्ट अलग अलग है, लेकिन जिसके भी साथ ये रेजोनेट कर रहा है रीडिंग, please pay heed to the guidance and get yourself out of this rut. Get yourself out of this toxicity. Heal yourself. Completely detach yourself. Cut the cord. यहाँ से. Welcome the divine masculine. अपने अंदर वो ताकत लाइए. Masculinity क्या है? It's all about that fearlessness, that strength, that courage. इस कार्ड में इन यांग का जिक्र किया था मैंने, जो कि आया था सिचुएशन में, लव सिचुएशन में आप दोनों के बीच. सो यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू वेलकम द डिवाइन. वेलकम द डिवाइन, माय डियर. Make yourself stronger, make yourself powerful in terms of thoughts, in terms of perception, in terms of mindset. Thoughts से ही सब कुछ पॉसिबल है. माइंडसेट ही सब कुछ है. जैसा आपका माइंडसेट वैसा आपका जीवन. आप डर रहे हैं. हो सकता है यू नो वाटर साइंस, मे बी अंदर ही अंदर आप समझ चुके हैं. ऑब्वियसली यू आर डिसहार्टेंड, यू आर हार्ट ब्रोकन. धक्का खा चुके हैं. आप रिस्क लेना चाहते हैं. ऐसा भी मेंटलिटी कुछ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ने ऑलरेडी सोच लिया है कि नहीं, मुझे निकलना है इस रिश्ते से, खुद को आजाद करना है. रिस्क के बारे में, रिस्क लेने के बारे में आप सोच भी रहे हैं, लेकिन स्टिल कुछ वाटर साइंस अभी भी एक पैर आगे रख के एक पैर पीछे रखे हैं.
सो प्लीज ये इस पैर को भी आगे लाइए, रिस्क लेने में खुद को मदद कीजिए, जरूरत हो किसी और का सहायता लीजिए, यू नो, टेक हेल्प from someone else who can help you out to get out of this toxic situation, toxic relation. You are scared deep down. यही गाइडेंस ये तीनों कार्ड में आया है. It's all related to fear, all related to the masculine side, it's all related to risk. इसका मतलब क्या है? आप डर रहे हैं, यूनिवर्स आपको तीनों कार्डों के जरिए आपको यही मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, यूनिवर्स गाइड करने की कोशिश कर रहा है कि प्लीज मेक योर सेल्फ करेजियस, मेक योर सेल्फ स्ट्रोंगर इन टर्म्स ऑफ योर मेंटालिटी, इन टर्म्स ऑफ योर माइंडसेट. Build that strength, build that courage. If required, take the help of others. लेकिन खुद को उस काबिल बनाइए, जरूरी है, क्योंकि आई नो यू कैनॉट टेक दिस शिट एनीमोर. आई कैन वेरी वेल सी दैट, माय डियर water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. I can very well see that. The picture is crystal clear. Okay, so this was it. और जाते जाते मैं और एक चीज कहना चाहूंगी कि इस तरीके के रिश्ते को कभी प्यार मत समझिए, प्यार समझने की गलती मत कीजिए. दिस इज नॉट लव माय डियर. दिस इज नॉट लव. This is addiction, this is obsession, this is toxicity, what and what not, full of negative aspects. Okay?